Everyone. I hope you are doing great. Welcome back to Blueprint by Christian. Again, we have Sagar today. Please, Sagar. Hello, hi Christian. How are you? I'm good, Sagar. Thank you for taking the time today and coming back again to the channel and meeting the audience once again. Today, the roles are a little reversed. Sagar is the host today, so I will not talk much and let the Sagar be the host and do the talk. Yeah, sure. Thanks Christian for letting me hijack the channel. So जैसे चैनल का नाम अपने ब्लूप्रिंट बाय क्रिश्चियन रखे हैं. So आज आपका ही ब्लूप्रिंट डिस्कस करते हैं. लाइक कि आपकी जर्नी कैसे रही, आपने कैसे नेविगेट किया है और कैसे एक गाजियाबाद के नॉर्मल कॉलेज से आके आप यूएस में एक बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी में जॉब करते हैं. आप का इवन पोस्टर वॉल स्ट्रीट पे आया है. दैट इज अ बिग अचीवमेंट. सो मे बी आप आज ये अपना एक 2 minute introduction, like what is your background, how much experience you have, what kind of tech stack you work on, what is like day to day life for you in US. So obviously, Sagar, as you already know me from, I think, almost a decade, 10 years 10 years से आप मेरे को जानते हैं एंड 10 साल में आपने मेरी जर्नी देखी है. तो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, I came from a city called Ghaziabad, then I came to Pune, then over there from non-tech to tech, and then I did not have engineering, computer science instead I have in electronics. So coming from that background and switching to computer science was tough, which we will discuss in this podcast. But the whole scenario of that was challenging. But at the same time, it's fruitful. Now, where I am sitting right now, I can see the worldwide view of the IT industry and tech from here. Yes, it is something worthwhile of learning and challenging for me at the same time. Sure. Okay, Christian. So yeah, Christian, जैसे आपने बोला, like we know almost from more than 8 to 9 years, and as a fresher join किया था आपने. So maybe हम आपने नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में जॉब स्टार्ट की थी एंड अब आप एक डेवलपर हैं. सो हाउ दैट ट्रांजिशन है, इन डिटेल डिस्कस करेंगे आपकी एमएस की जर्नी, ये नॉन टेक्निकल रोल से टेक्निकल रोल की जर्नी, बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट हाई लेवल नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से एक आईटी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक डेवलपर बनना. Right. Sure, Sagar. I will go in depth and talk about my own experience with challenges which I have faced in coming in this journey so far. I'm going to talk about the things which I have learned, which I should have do more pace and earlier in life, which have lagged because of the own struggles. So I will talk in depth so that anybody who has any sort of looking for making a switch, they can make that. तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो मेरी जर्नी थी स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया, आई डिड माय बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. बहुत लोग एंड देन दे स्विच टू आईटी, सो आई वाज वन ऑफ देम दैट आई came from non-tech to tech. Then, as you mentioned, I started working when you were our mentor in that company and teaching us for the first 2 months. That was my first journey started over there with all the other folks coming from Jaipur or Indore or Delhi, who with other senior members of the company was teaching us the domain and whatever required to get succeed over there in that role. That was really, it looks like it was yesterday, but it's already like 2017. So it's 8 years now. या सो वन क्वेश्चन क्वेश्चन कि जैसे बहुत सारे लोग मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड दे वांट टू मूव टू कंप्यूटर साइंस. सो क्या आपने भी कभी कोडिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक में जब आप इंजीनियरिंग के 4 साल में, या आपने डेवलपमेंट, लाइक अगर हम बात करें कोड रिलेटेड, कुछ भी किया था, या आपने कैसे उसको जब फर्स्ट टाइम देखा कि अच्छा ये कोड होता है, आपका क्या रिएक्शन था, या आपने कैसे उस पे देखा. सो मैं ये बोलूंगा कि मैंने उससे पहले कभी कोडिंग नहीं की थी. हाँ, मैंने हाँ, स्कूल्स में सी प्लस प्लस सिखाया जाता था. तो मुझे यू नो दैट जो कमांड्स होती थी, इनिशियल कमांड्स, आई डोंट नो, आपको तो शायद रिमेम्बर होंगी, वो जो स्टूडियो कमांड्स होती थी सी प्लस प्लस में, वो सब आती थी.
बट ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं की थी बिकॉज फिजिकल एजुकेशन था 11th एंड 12th में, तो आई डिड नॉट डू कंप्यूटर साइंस, आई डिडंट लाइक दैट। बट बैक अगेन जब इंजीनियरिंग में आते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो, इलेक्ट्रिकल लेते हो, और इधर मैकेनिकल लेते हो और सिविल लेते हो, जो स्कोप है मतलब उन डोमेन्स में, स्पेशली राइट नाउ इन इंडिया, वो अगर है भी तो वो स्पेस स्केल पे नहीं, जिस स्पेस स्केल पे होना चाहिए। तो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन कि व्हाइल कमिंग टू द थर्ड ईयर आई थॉट कि it would be better for me that I start learning Java, and that I have both the option, electronics and computer science, for making the placement. Then again, एक और चीज बहुत important है कि जो domains है इलेक्ट्रॉनिक्स, VSLI, डिजाइन एंड ऑल दोस थिंग्स अभी इंडिया में हो गए हैं, बट 2015, 16, 17 में इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जो इतने सारे बच्चों का कंजप्शन कर पाती उस डोमेन। फैक्ट जो मास हायरिंग हुआ करती थी उस टाइम, इन्फोसिस, TCS, कांग्रेस, इंडियन IT सर्विसेज कंपनी ले लो, तो वो ज्यादातर किसी भी डोमेन को लेती थी, बट उसको बस ही कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट माय रीजन कि मेरी 5th और 6th सेमेस्टर में आई स्टार्टेड लर्निंग जावा। I took a external class. I still remember way back in Noida. So I started over there, little bit of Java. Still मेरे को आया नहीं था, but मैंने खुद सीखने की कोशिश करी। That's Nice. Yeah. Okay. I think that's good. Then हम अगर बात करें, जैसे आपने कुछ टाइम काम किया, आपने MS करने का कैसे डिसाइड किया कि आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में ही मास्टर्स करना है, एंड वो भी US से? क्योंकि बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं या इवन जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो सोच रहे होंगे कि मैं नॉन नॉन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस में नॉन टेक्निकल फील्ड में हूँ, या मुझे MS करना है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आपके क्या लेट्स से 3 की पॉइंट्स थे जिसने आपको ट्रिगर किया कि नहीं, अब मुझे MS करना है, वो भी US से, और वो भी कंप्यूटर साइंस में? सो सागर इसमें ना मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो हम स्पेशली जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, मैं आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप 2 स्टेप्स आगे रहिए अगर आपको लाइफ में सरवाइव करना है। तो शायद मेरे पास हमेशा से वो स्किल्स नहीं थी, बट मेरे पास हमेशा से वो एम्बिशन हमेशा से था कि हाँ मुझे करना है। एंड एम्बिशन के साथ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स से जावा सीखने का डिसीजन हो मेरा कि मेरे को जावा सीखनी है। चाहे मेरी फर्स्ट जॉब में मेरे को MS का डिसीजन लेना हो कि मेरे को MS करनी है, वो एक डिसीजन आई थिंक वो एम्बिशन से आया, सराउंडिंग्स को देख के आता था कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है, तो व्हाई नॉट अभी जाया जाए, क्योंकि लेट होने के बाद क्यों जाया जाए, बिकॉज आई वाज यंग दैट टाइम। तो आई टुक दैट रिस्क। टू बी ऑनेस्ट, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी थी। टू बी ऑनेस्ट, ना ही मेरे पास उतना वर्क एक्सपीरियंस था। अर्ली वर्क 1 ईयर, आपको तो पता है, 1 साल ही मैंने काम किया था। एंड बट मेरे को लगा कि अगर मेरे को स्टेप अहेड करना है टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, क्योंकि अगर मैं इंडिया में नॉन टेक से टेक में स्विच करता तो मेरे को बहुत ही स्टीप कर्व लेना पड़ता लर्निंग का। एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी उतनी लिमिटेड ही रहती हैं, स्पेशली बिकॉज आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एक एवरेज इंसान नहीं, मैं बहुत एक एवरेज जो जस्ट दैट कि मैं अपने एम्बिशंस और हार्डवर्क से परसिस्टेंस करता हूँ कि हाँ उस चीज़ को कंटिन्यूटी में लाया जाए। तो बस वही एक एम था कि मेरे को स्टेप अहेड करना है, आगे जाना है। और वो आगे मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे को आई हैव टू जंप, आई कैन नॉट टेक अनदर स्टेप। सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ डूइंग दैट वेरी अर्ली कि दैट्स द टाइम, लेट्स डू इट। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने घर वालों को तब बताया जब मेरा वीजा लग गया था। Yes, I know that. आपको Yes. पता है वो मुझे पता था पहले। आपको उससे पहले पता था। Yes, exactly. इनफैक्ट मेरे घर वालों को नहीं पता था। शॉर्ट स्टोरी क्वेश्चन, सॉरी, मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि ऑब्वियसली आपने बोला कि आप एवरेज कंसिडर करते हैं आपको, बट ऑब्वियसली आप उससे आगे हैं, बट इट्स गुड टू बी हम्बल। बट मैं आपको कॉलेज से नहीं जानता, आपकी फर्स्ट जॉब से जानता हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं आपको कॉलेज से जानता हूँ। एंड व्यूअर्स को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास लेट्स से टैलेंट, स्किल नहीं है, या अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फाइनेंशियल, ये सब चीजें तो ठीक है, बट अगर आपके अंदर एक तो है आपका, आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आपके अंदर है परसिवरेंस, वो बहुत जरूरी।
एंड सेकंड चीज़ जो डेफिनेटली आपके अंदर थी, वो थी आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस। बिकॉज़ मुझे पता है आपने कैसे पहले नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेके आप इसमें आए। देन कैसे आपने इवन आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में अलग-अलग बिज़नेसेस किए, पैसे अर्न किए। आपने अपने खुद के पैसे जमा किए फॉर एमएस। एंड हम मुझे अभी भी याद है वो कन्वर्सेशन कि आपकी फ्लाइट टिकट के पैसे की जब हम बात कर रहे थे कि अगर राइट, कुछ नहीं हुआ तो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? राइट। एंड हम लोग रेडी भी थे उसके लिए, बट आपने उस टाइम भी अपना दिमाग लगा कि वो चीज़ भी सॉर्ट आउट। तो आई थिंक street smartness is very underrated skill, but it is, I think, one of the most important skills, I would say. Yeah, I think that one thing definitely you You have a appreciate. great memory. I still remember that, and it was obviously like मैं एक obviously first individual to come to US from my family हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। मेरे को जो फैमिली सपोर्ट होता है जिन लोगों के पेरेंट्स या we all know that कि हमारे पेरेंट्स they are not that internationally educated, they are within their country कि हाँ हमारे देश में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, but which is and obviously like America is a capitalistic country, तो So, so next, I think next चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वो इसी से रिलेटेड है कि अब आप लेट्स से यूएस आ चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू कम टू यूएस, वीजा प्रोसेस, वो सब बात की। बट एक मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि हमारी डिस्कशन कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे होती नहीं थी कि कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है। लाइक मोस्टली हम दूसरी चीजें डिस्कस किया करते थे। तो आपको क्या पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस फेस, जो मुझे पता है बट आप व्यूअर्स को भी बताइए कि जो कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, टेक्निकल चीजें अगर हम छोड़ दें, पर्सनल लेवल पे जैसे आपकी हाउस हंटिंग हो या नए लोगों से दोस्ती बनाना हो, आपके पार्ट टाइम जॉब्स की एक्साइटिंग स्टोरीज हो सीखी, मे बी आप वो शेयर भी। yeah sure। तो जब मैं यूएस आया था तो ऑब्वियसली एक एडवांटेज था ये कि जिस फर्म में हम लोग काम किया करते थे जो कि एक आईटी सर्विस कंसल्टिंग फर्म थी, तो उसमें वी मेड सम कनेक्शन ऑब्वियसली जो हाँ लोग यूएस में काम कर रहे थे, तो उससे एक अच्छी बात थी कि आई नो हियर एंड देयर वन और टू इंडिविजुअल इन द यूनिवर्सिटी व्हेन आई केम, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी यूनिवर्सिटी आते हो तो आपको एक दो लोग जानते हो, बिकॉज आप कहाँ रहोगे आके, कहाँ क्या खाओगे आके, क्योंकि आप कोई वहाँ से इंडिया से कोई सब्जी वगैरह पैक करके तो नहीं ला रहे होते हो। आप यहाँ के पहले दिन क्या खाओगे, कहाँ जाओगे। चैलेंजेस ये है कि आपको पीयर प्रेशर में कभी नहीं आना है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलाउ नहीं भी कर रही है यूएस आना, बट आपके एम्बिशन से और आप कैसे भी करके आते हो, लाइक वन ऑफ माई एग्जाम्पल, तो आपको पीयर प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि ये सिचुएशन है 1 या 1.5 साल की, इसके बाद यू हैव टू अर्न एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। तो इस 1 1.5 साल में आपको पीयर प्रेशर में नहीं आना है, किसी बार हॉपिंग में नहीं जाना है, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करनी है, बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ मनी। आपको देखना है इस पैसे में मेरे को कैसे सर्वाइव, एंड ट्राई टू फाइंड कनेक्शंस बनाओ, कैसे भी करके अपना कैंपस प्लेसमेंट लो, पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे, ताकि आप कुछ तो अर्न कर टू सपोर्ट आप योरसेल्फ। अपनी कुछ जर्नी शेयर करना चाहेंगे, कैसे आप बर्गर बनाते थे, आपने कैसे राइट। दूसरे जॉब की जी डिपार्टमेंट आपने तो जॉब किया? मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड वो कैंपस डाइनिंग में काम करता था, वहाँ का मैनेजर था, मतलब स्टूडेंट मैनेजर था। तो उसने मेरे को स्टूडेंट डाइनिंग में लगाया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग, हॉल पे था बेसिकली, एंड मैं पिज़्ज़ा बनाता था स्टार्टिंग के, आई थिंक आई केम इन जनवरी और फरवरी गॉट दैट जॉब, सो विद इन 1 मंथ। सो दैट वाज स्मूथिंग पार्ट फॉर मी, इसलिए मैंने, इट वाज गुड एट द फर्स्ट, बट ऑब्वियसली हमने लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं करी है, तो आई गॉट माई स्किन बर्न यहाँ पे, ये आई गॉट माई स्किन स्टिक ओवर देयर ऑन दैट ओवन। इट वाज टफ, was tough, I would say that अभी मैं शायद आसानी से बोल पाऊँ, बट वो चीज़ें टफ थी, बिकॉज आपने नए किए, आप एक सर्टन पोर्ट लेके आते हो, कि और स्पेशली लाइक इंडिया में हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है, हम कॉर्पोरेट जॉब करेंगे या कुछ करेंगे, ये चीज़ें दूसरे लोग करते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं या कुछ और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। बट ये मेंटालिटी का जो ब्रेक था, ये बैरियर ब्रेक मैं बोलूँगा, वो यहाँ के हुआ कि नहीं, नो जॉब इज अबव और लेस, इट्स अ जॉब, आपको अपनी जॉब करनी है,
तो वो 8-8 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी। आई स्टिल रिमेंबर कैंपस में जाके क्लासेस भी करते थे। दोज वर द हार्ड डेज। फिर बट लकीली मैंने स्विच किया वहाँ से। आई गॉट अ करियर एम्बेसडर जॉब। मैं करियर सर्विसेज में काम करने लगा। करियर एम्बेसडर में आप जैसे इंडिया पेरेंट्स आते हैं पूछने के लिए विच स्ट्रीम माई किड शुड टेक, तो करियर सर्विसेज में भी ऐसा होता है। करियर एम्बेसडर बताता है कि ये स्ट्रीम अच्छी चल रही है, लाइक एग्रीकल्चर, बैचलर, ही डिपेंड करता है आपका कॉलेज कहाँ पे, कौन सी कैंपस प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हो रही है। तो करियर सर्विसेज में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू टॉक विद, दैट्स माय फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन इतना ज्यादा मैंने फॉरेनर्स के साथ किया, लाइक आउटसाइड, बिकॉज डाइनिंग में आप इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हो। तो वो फर्स्ट टाइम मेरा इतना सा ज्यादा इंटरेक्शन था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, as the token of bond which me and the career services still have. Giving back to the society. Right. That's what my aim is कि ठीक है, whatever I learned from the last half a decade of corporate experience वो है कि मैं कुछ दे पाऊँ। फिर मेरा एम था कि मैं ग्रेजुएट असिस्टेंट, बिकॉज ग्रेजुएट असिस्टेंट में क्या होता है, वंस यू गेट द जीए यू गेट योर ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ। तो ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ जब होती है तो यू गेट ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ योर मनी सेव्ड। बिकॉज अगर आप सपोज $100 देते हैं, अगर आपको ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ हो जाती है तो $60 से $70 ऑफ होके आपको सिर्फ 30 या $35 देना, विच इज अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज एज आई सेड my parents did not took a loan or things like that। जो भी किया उन्होंने खुद से किया। एम्बेसडर होने के बाद भी मैंने जीए की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। लकीली आई गॉट द जीए। तो मैंने करियर एम्बेसडर वालों को बोला कि मेरे को जीए मिल गया है, मैं शायद अब आगे यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। देन आई गॉट जीए। तो $800 मिलते थे फॉर अ जीए और मेरी ट्यूशन फी ऑफ थी। तो मेरे को 2 सेमेस्टर मैंने जीए किया, 1 सेमेस्टर मैंने करियर एम्बेसडर किया, 1 सेमेस्टर मैंने डायरेक्ट। तो आई डिड मल्टीपल जॉब्स इन द कैंपस जस्ट टू मेक श्योर कि मैं यहाँ अच्छे से रह पाऊँ। और ऑब्वियसली जब मेरे को जीए मिला तो मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। मेरे ट्यूशन कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो मेरी $800 से कवर हो रही थी। मेरी जो जीए थी उससे मेरी जो फी थी, जैसे मैंने आपको बताया, 60 to 70% रिड्यूस हो गई थी। तो इससे मेरा मास्टर जो है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम में हो गया। और देन आई ग्रेजुएटेड विद 4.0 विच इज, इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते हैं। तो मेरा एक ही एम था कि जितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं करें। एंड आई नॉट हैविंग मच फन, यू कैन हैव फन बट उससे ज्यादा फन नहीं करना है। वी डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव दो सॉर्ट ऑफ हॉबीज। तो मैंने कभी उन चीजों में एंगेज करने की कोशिश। तो ये जर्नी थी सागर। बट यस, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। Yeah, I think जो हम बात करते हैं कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स या जो हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग काफी अच्छी। सो या आई थिंक 4.0 लाते हैं, एवरेज है तो आई थिंक इट्स गुड टू बी एवरेज। तो आई थिंक अब जो हमने बात की कि आपका 1.5 इयर्स आपका एमएस चला, अब हम बात करें नेक्स्ट फेज, कमिंग बैक टू द जॉब एंड टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे थे, बट देन कोविड हैपेंड। यस। So I think what was that time for you? Like COVID आ चुका है. Let's paint the picture for everyone. Final semester में आपने MS in Information Systems किया है. So आपके subjects mostly related to business communication या उस तरह के रहे होंगे, like not hardcore development in detail. So but आपको जाना था hardcore development या software engineering jobs में. So आप लास्ट सेम में एंड सडनली मार्च आ चुका है, कोविड है। सो वहाँ पे आपकी जर्नी कैसी रही कि कोविड में कैसे नेविगेट किया, कैसे आपने अपनी कोर टेक अनसर्टेनिटी थी एंड हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब? आई वुडंट से फर्स्ट जॉब बट फर्स्ट जॉब आफ्टर एमएस, राइट। और फर्स्ट टेक्निकल जॉब। As you mentioned, COVID graduation. COVID, it was the first time in the history of any universities. Mostly यही हुआ कि Zoom पे graduation। तो वो भी एक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री था यूनिवर्सिटी के कि Zoom पे graduation, बिकॉज ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग ह्यूमन हिस्ट्री में हुई थी। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, many of the companies laying off, cutting the individuals down because obviously businesses इतने ज्यादा नहीं चल रहे थे।
एंड फिजिकल जो लोकेशन थे बिजनेस चैलेंजिंग बहुत ज्यादा था. अनदर पार्ट इज दैट इंटरनेशनल वीजा. तो आपको आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट. अब मैंने जो एक्सपेक्टेशन के साथ आया था वो एक्सपेक्टेशन एकदम 360 टर्न कर चुकी है. तो अभी मैं क्या करूं, विच इज लाइक फेचिंग द मूवी IMDb. आई थिंक मैंने आपसे बात की थी मार्च में या फरवरी में, और मैं ग्रेजुएट होने वाला था. तो वो 2 to 3 months में मेरा था कि मैं एक कोर प्रोजेक्ट ऐसा बनाऊं जिसमें मैं हर चीज यूज करूं. ऑब्वियसली फ्रॉम स्टोरी मेकिंग टू जीरा स्टोरीज कैसे होंगी, गेट फर्स्ट ले डाउन एक्सप्लेन. गुड पार्ट अबाउट दैट क्या था, जैसे आपने एक चीज, इट वाज टफ बट आई थिंक आई हैड दैट लक एंड मेंटर्स लाइक यू एंड माय पेरेंट्स सपोर्ट कि मेरे को इतनी ज़्यादा. आई थिंक देयर इज अ कार्ड कॉल्ड OPT कार्ड. वो OPT कार्ड जब आता है तो उसके बाद आपके पास 90 डेज होते हैं. एंड आई गॉट इन द फर्स्ट 15 days माय फर्स्ट जॉब, फुल स्टैक डेवलपर JS एंड React. इट वाज गुड. उसका अलग एक्सपीरियंस है वो जॉब कैसे रही, बिकॉज चैलेंजेस अलग थे. बट यस ऑब्वियसली आपकी हेल्प मेरे को काफ़ी लगी एंड आई एम स्टिल थैंकफुल टू यू कि आप उस टाइम अवेलेबल थे हेल्प करने के लिए. आई थिंक यू वर इन पुणे इन दैट डेज. इट वाज गुड. या बट आई मीन इट वाज ऑब्वियसली योर डेडिकेशन, क्योंकि मुझे अभी भी याद है प्री कोविड हमारी बात हुई थी. आई वाज ट्रैवलिंग इन बस, आई वाज गोइंग फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर, और आपने मुझे बोला था कि आई थिंक इट वाज जनवरी कि कुछ करना है. एंड आई थिंक दैट दैट ज़ील ऑब्वियसली शोज कि भी आने वाला है, कोविड आने वाला है, किसी को नहीं पता था, बट स्टिल यू वांटेड टू बी प्रिपेयर कि मुझे क्या करना चाहिए ये सब. एंड हमने डिस्कस किया था, एंड ऑब्वियसली आपने उस पे इतना हार्ड वर्क किया, एंड ऑब्वियसली इट शोज. सो दैट इज ऑब्वियसली द ग्रेट पार्ट. एक पॉइंट मैं इसमें पूछना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल थिंग्स, कि आप यूएस में अवे फ्रॉम योर फ्रेंड, योर ऑब्वियसली योर फैमिली, एंड मेनली अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, एक अलग कंट्री. स्टिल आपने एक साल हो गया था यूएस में, बट स्टिल यू वर न्यू टू द न्यू कंट्री, यू वर ऑन वीजा, यू वर अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, एवरीवन. सो हाउ वाज दैट टाइम? ठीक है, आप टेक्निकल थिंग्स पे वर्क कर रहे थे, दैट वाज वन पार्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आपके वहाँ के फ्रेंड्स, वहाँ के मेंटर्स, वहाँ के टीचर, उनका कैसा सपोर्ट रहा आपको, या इन जनरल आप उस बारे में क्या बताना चाहिए? हाउ डिड यू मेंटेन योर सैनिटी, अगर हम बात करें? राइट. तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि यहाँ पे ना आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा. आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा फॉर द सिचुएशन. जैसा आपने बोला कि आपके फैमिली फ्रेंड्स, बट आप मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. वो एक इंसान के लिए वो मेरे आई थिंक जिस सिचुएशन से मैं निकल के आया था, या जो मैंने अपने मन में ठाना था जब US आने से पहले, बिकॉज मेरे को पता था कि मेरे पास फॉल बैक, आई कैन नॉट फॉल बैक. मतलब अ, मैं फॉल बैक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पीछे जाने के लिए कुछ है नहीं. तो मेरे पास ये था कि मेरे को आगे ही जाना है कि कुछ भी करके. तो जब आपके पास प्लान बी नहीं होता है बिल्कुल, आपके पास सिर्फ एक ही प्लान होता है कि प्लान ए है, तो आपको मेंटली आप इतना स्ट्रांग हो जाते हो कि आप एक एक अपॉर्चुनिटी पे कैश इन करने की कोशिश करते हो. एंड दैट वाज मी. मैं लीनियंसी नहीं दिखा रहा था, मेरे को था कि मैं एक एक अपॉर्चुनिटी पे करना है, क्योंकि मेरे पास जैसे लोगों के पास यहाँ ब्रदर्स सिस्टर्स कजन्स रिलेटिव्स होते हैं, आई डिडंट हैड एनी वन ऑफ देम. तो मैं खुद से यहाँ आया था और मेरे पास था सिर्फ मैं, और मुझे ही वो करना था. अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मेरे लिए कोई. इट वाज सिंपल एज दैट. Okay, तो यही यही मेरा गुरु मंत्र था कि आई वाज होल्डिंग माय ओन बैक साइड. दैट्स ऑल. okay, that's great. So okay, then next thing, I think last दो क्वेश्चन है मेरे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, आपने सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट किया, एंड हाउ डिड यू मूव टू बिग फिनटेक कंपनी? वो जर्नी आपकी कैसी है, अगर आप शॉर्ट में उसका कुछ बता सकते हो? यस सर. सो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा मेरी फर्स्ट जर्नी से, जो कि मेरी फर्स्ट कंपनी यहाँ पे टेक्निकल रही. मैं उससे बताना चाहूँगा कि उसमें जो सिनेरियोज थे मेरे लिए थोड़े चैलेंजिंग थे, क्योंकि इट वाज अ सर्विस बेस्ड कंपनी अगेन एंड आई वाज वर्किंग टिल 1 or 2. आपको पता भी है, वी यूज्ड टू शेयर दो स्टोरीज. बट मैंने वहाँ से बहुत सीखा. मैंने कभी कंप्लेन करना, क्योंकि जब आपको पता है कि
एक ये थोड़ा सा ज़्यादा कुछ लोगों को इमोशनल या मोटिवेशनल लग सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर ओन सिचुएशन। बट जब आपको पता रहता है कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, तो उसमें आप कंप्लेन करना छोड़ देते हो कि मैं 1 बजे तक काम कर रहा हूँ, मैं 2 बजे तक काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को काम मिल गया, मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ। यही मेरी खुशी थी कि हाँ, आई गॉट दिस थिंग, आई एम हैप्पी इन दैट। मैं मेरे घर वाले, मेरे जो फैमिली है वो प्राउडली बोल सकती है कि हाँ, आई केम टू अमेरिका, आई गॉट द जॉब, मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। चाहे फिर मैं 12 बजे तक काम करूँ या 1 बजे तक, वो उस चीज़ से ऑब्वियसली मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। ना ही मैं कभी कंप्लीट करता था। माय ओन गोल वाज़ दैट कि मैं सीखूँ यहाँ से, उसके बाद मैं कुछ कर पाऊँगा। तो हाँ, वो चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि कभी 14 घंटे काम करना, कभी 12 घंटे काम करना। क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली आपने बताया कि मैंने because it was core technical skill and we were making a project from scratch. तो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था फर्स्ट, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मैं क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ। बट शायद बहुत लोगों से ज़्यादा इंटरनेशनली, नेशनली ट्रैवल कर चुका हूँ। 3 कॉन्टिनेंट्स, 21 स्टेट्स ऑफ यूएस। सो बहुत सोलो ट्रैवल भी कर चुका हूँ। तो इसमें कंप्लेन नहीं कर सकती हो, आप सब कर सकते हो जो आपको मिला नहीं करना। So Not मैं something like हाँ, यस सर, sorry, just यहाँ पे as we are on your first job, so maybe इस पे हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं फ्रॉम माय साइड की मुझे याद है कि आपने जब फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी एंड वहाँ पे आपको किस तरह के चैलेंज आ रहे थे, ऑब्वियसली मोर टेक्निकल, क्योंकि जॉब तो आपने पहले की थी, so you knew how to work in corporate and these things, and आपके जो क्वेश्चंस हुआ करते थे मुझे स्टिल याद है कि काफी बेसिक हुआ करते थे बिकॉज यू वर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट मुझे तो उससे कुछ जज करने के जैसा नहीं लगता था, बट मुझे याद है कि आप कुछ लोग थे आपकी कंपनी में जो उस चीज के लिए आपको, मैं नहीं कहूँगा परेशान, बट वो उनका आउटलुक था कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि आप ये सब आपको आता हो, बट स्टिल ऑब्वियसली नेविगेटिंग दैट नॉन टेक्निकल थिंग्स और the surroundings or the team dynamics, I would say politics थोड़ा negative word हो जाएगा, so let's call it team dynamic, because maybe they were not wrong, they were expecting few things and at that time you were not up to the mark, so team dynamics manage करना, so maybe can you share something on that, how did you manage the team dynamics, और जैसे आपको कुछ टास्क दिया है and आपको वो चीज़ नहीं आती तो आपको सीखनी भी है और करनी भी है, बट आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत लोग फेस कर रहे होंगे अभी भी, एंड ये काफी आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबको पता होना कि हाउ टू नेविगेट दीज थिंग्स। राइट। तो सागर मैं बोलना चाहूंगा, दोस्त वर द डेज जब एआई नहीं था, आप चैट जीपीटी से नहीं पूछ Yes. सकते थे। Exactly. आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके चीजें समझते थे। तो मैंने आपने एक बात बोली थी मुझे, जो मैंने आज तक याद रखी है, जब इनिशियल डेज में मैंने आपसे डेवलपमेंट सीखना चालू किया था, कि अगर एक डेवलपर एक चीज को करने में 15 मिनट एक एरर सॉल्व करने में लगा रहा है, तो वो 15 मिनट दोबारा सेम एरर अगर आता है तो 15 मिनट नहीं लगने चाहिए। दैट्स व्हाट मेक्स यू बेटर। तो वही एक चीज पे मैंने हमेशा ये सीखा कि ठीक है, मेरे को कोई चीज नहीं आती है, मैं सीख रहा हूँ, बट अगर मैं दोबारा अगर वैसा ही टास्क मेरे को मिलता है तो मैं उतना टाइम ना लगाऊं। एक तो वो चीज, दूसरी चीज जैसे आपने बोला कंपनी में हाउ आई वाज मैनेजिंग अलोंग विद द पीपल, कभी भी आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है इनिशियली, कभी भी। आप हाँ, रेदर व्हाइल यू लिटरली गोइंग अप इन योर कंपनी और कॉर्पोरेट्स, आप थोड़ा बहुत इधर उधर देख सकते हो, बट इनिशियल लेवल पे यू नेवर शुड एंगेज इन एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स और एनी सॉर्ट ऑफ, बिकॉज आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, आपको हर किसी से सीखना है। आपको नहीं पता है कि कौन किस टास्क में आपको हेल्प कर सकता है। आपको नहीं पता है कि आप को कौन सा इंटर रिलेटेड या क्रॉस टीम टास्क मिल जाए। तो मेरे हिसाब से मैंने एक ही चीज की कि मैं कभी भी इन सब चीजों में नहीं था। हाँ, मेरे को लोगों ने थोड़ा बोला कि आपको टेक्निकल इतना इनिशियली नहीं आता है, तो उन्होंने मेरे को कुछ एक दो चीजों में बोला ये सब चीजें, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द थिंग। लाइक आप कभी भी स्टार्ट करते हो, आप कभी भी सीधा मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं करते हो, आप साइकिल स्टार्ट करते हो, उसमें भी 2 टायर्स लगे होते हैं सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपने कैसे सर्विस कंपनी से
वर्ल्ड की रिनाउंड फिनटेक कंपनी में स्विच किया एंड वहाँ पे आपकी जर्नी कैसी रही है अभी लास्ट आई थिंक 2 साल हो गए आपको, मोर देन 2 इयर्स। सो ये जर्नी कैसी रही है? तो मैं जैसा आपको पता है कि फर्स्ट जॉब जो मैंने स्टार्ट की उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मेरे को एक एडवांटेज उस जॉब में ये हुआ कि ऑल्दो इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो अ, कुछ लोगों को सर्विसेज पे काम मतलब सपोर्ट पे काम करने का मौका मिला एंड मैं उनको देख के सोचता था कि ये तो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, और मेरे को एकदम जो कोर प्रोजेक्ट पे अ, उनकी एक टीम उस पे काम करने का मौका मिला। तो मैंने 2 कोर प्रोजेक्ट्स पे काम किए और जो कि 6 मंथ्स और 4 मंथ्स में डिलीवर करने थे, व्हिच इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइमलाइन जो कि हमारे डिलीवर करने के लिए। और उसमें मेरे को सीखना भी था, जिसमें मेरे को रिएक्ट, नोड जेएस, सर्वलेस, ईडब्ल्यूएस की सर्विसेज, वो भी प्रोडक्शन। तो मेरे लिए वो बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, ऑल्दो इट वाज चैलेंजिंग बट आई ट्राइड टू लर्न। That gave me that confidence after year and a half that I saw कि मैं बहुत ही अंडरपेड हूँ और मुझे कुछ अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने अप्लाई किया और पहली बार में आई फेस 19 रिजेक्शंस। मेरे को एक्यूरेसी पता है, आई फेस 19 रिजेक्शंस। उसके बाद मेरे को 3 ऑफर्स मिले एंड 3 ऑफर्स में से फिर मैंने ये चूज किया। एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि जब मैंने ये चूज किया तो जो मेरी सर्विस कंपनी थी वो मेरा ग्रीन कार्ड का प्रोसेस और एज आई सेड कि मैं थोड़ा अंडरपेड था वहाँ पे, नहीं दे रहे थे मेरे को वो हाइक और वो वीजा। तो जब मैंने यहाँ पे स्विच किया, मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया एंड आई वेंट टू माय मैनेजर एंड आई टोल्ड हिम कि मैं अब आगे नहीं सोच रहा हूँ यहाँ काम करने का, एंड आई ऑलरेडी गॉट एन ऑफर और मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि व्हाट्स योर पे ओवर देयर, लेट मी नो, गिव मी द रेंज। तो आई वाज लाइक नहीं, बिकॉज इन द 40% हाई और 45% हाई व्हाट यू गिविंग, मतलब 40-45% बहुत होता है। तो आपने विद इन द 10 seconds he said we will match, and then I said they are doing my green card process. Then he said we will also do that your green card process, just give me 2 hours, let me go and confirm that with the manager. After 2 hours, I got that message that yes, we will do your. So आपको आपकी वर्थ कभी कभी पता नहीं होती है जब तक आप बाहर ना जाओ, जब तक आप बाहर जाके अपनी वर्थ टेस्ट ना करो। उससे मैंने वो चीज सीखी कि क्योंकि अगर शायद वो मुझे 5% या 10% वही रेस दे देते तो शायद मैं कभी जाता है। तो एक वो बात है। अब कमिंग टू दैट, जब मैंने वो 19 रिजेक्शन देखे सब कुछ करने के बाद, तो मैं ये एक ही चीज उससे भी एक्सपीरियंस से बोलना चाहूंगा। रिजेक्शन आए, आपको अपने को तभी तैयार करना है व्हेन यू हैव द जॉब। आपको तब नहीं तैयार करना व्हेन यू डू नॉट हैव द जॉब। तो वंस यू गेट द जॉब, पहले दिन ही आपका मोटिव होना चाहिए किसी भी रोल में आते हुए कि मैं नेक्स्ट रोल में कैसे जा सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, चाहे मेरे अंदर स्किल्स थी चाहे नहीं। So that was one of my mantra. When coming to fintech, which is one of the leading fintechs in North America, यहाँ पे आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा, बिकॉज जो बड़ी फर्म्स है उनका वे ऑफ वर्किंग बहुत डिफरेंट है। उसमें बहुत सारी चीज स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही आप स्कैटर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जब आते हो तो यहाँ पे कोड पैटर्न्स, कॉन्फ्रेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। टीम साइजेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं। वास्ट आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अदर देन जस्ट वर्क। आप को करिकुलर एक्टिविटीज, वॉलंटियर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो जब आप बड़ी फर्म्स में आते हो, ईदर ऑफ द बिग फर्म्स जब आप चाहते हो, क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपको प्रोवाइड करने के। प्लस दे गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स, विच आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक एप्लीकेशन डेवलपर था, फिर मैं वहां से प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में आया, जो कि बहुत ही डिफरेंट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर एप्लीकेशन डेवलपर्स की वो बिजनेस लॉजिक लेके, बट उसमें जो आपका स्कोप ऑफ आर्किटेक्चरिंग है, स्कोप ऑफ डिजाइन, वो मेरा एक लर्निंग प्रोसेस रहा जो आज मैं सीख पाया हूँ कि जो वो वे ऑफ थिंकिंग है जिससे मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिली
अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स में जाने की, और कहीं पे मैंने अटेंडी गया, कहीं पे मैं एज अ स्पीकर गया, तो टेक्निकल बुक्स रिव्यू करने की, मेंटरशिप प्रोवाइड करने की, तो ये अपॉर्चुनिटीज मेरे को इस फिनटेक फॉर्म में आने के बाद में, एंड स्पेशली जो मैंने अपने आप पे काम किया, गेटिंग अराउंड द सराउंडिंग्स, उनको देखते हुए। नाइस क्वेश्चन, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव, एंड आई थिंक ये काफी हेल्प करेगा काफी लोगों को. सो आई थिंक 1-2 सेंट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव, अगर कोई बड़ी कंपनी के सीईओ, सीटीओ और एनीवन इन पोजीशन ऑफ पावर अगर ये सुने, तो आई थिंक उनके लिए भी अगर वो हमारी एडवाइस लेना चाहें, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल सब कि हर एम्प्लॉय की तरफ ध्यान दिया जाए, बट अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आई थिंक उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए. अदरवाइज पीपल डेफिनेटली विल जंप द शिप एंड यू कैन नॉट ब्लेम द पीपल और द एम्प्लॉयज फॉर दैट. So I think with that, I think my questions are done. But following your tradition, Krish, so मेरे पास भी rapid fire है आपके लिए. All right. And obviously, I've not shared questions with you, so this is Let's see. good. So let's start the rapid fire, and we need quick answers, obviously. So let's start. So first is service-based company or a product development company? As a fresher, does not matter. Get whatever you want. Get first. जाएंगे जो आपको मिलता है. But yes, once you get into any one of that, go to the product base. You will learn more things. Your preference is product. I will Product-based or product development? Okay. product development. MS in US or BTech in India? BTech in India. Okay. So web development or platform development, platform engineering? Platform engineering. Okay. And what is your preference? Work from office or work from home? Or Hybrid. hybrid? From Whatever. Okay. So what is more important, in-depth learning or expanding the breadth of your skills? Initially, in-depth learning, you have to be expertise on, if I say expert level is 10, then 7 to 8, if I'm on JS or Python or anything, one in-depth learning of any one of the tool or language, then you have to expand, because if you have to grow, you have to go into different segments of technology. Total compensation or job role? मैं इसका दोनों इसका आंसर आई थिंक थोड़ा डिफरेंट देना चाहूंगा. इसका आंसर आई थिंक टोटल कंपनसेशन आपको बर्नआउट होने से बचाते हैं, क्योंकि until unless you don't have that motivation, प्लस आपको रोल भी चाहिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन क्या है ये डिपेंड करता है. कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन सिर्फ टोटल कंपनसेशन है, कुछ के रोल है. अब मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे लिए दोनों ही मायने रखते हैं. मैं टोटल कंपनसेशन में थोड़ा सेक्रीफाइस कर लूंगा अगर मेरे को रोल अच्छा मिलता है. Okay. So now one question which will have like sub questions. Which city in US? So which city in US you like the most for vacation? Which city in US I like the most for vacation? I would say I prefer West Coast mostly. Any particular? Any particular city, if I say I like, LA, I like San Francisco. Okay. Whole of the West Coast is very beautiful because आपको बहुत दोनों ही बीचेस और माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको शायद ईस्ट कोस्ट में ना मिले. बट यस, Which city in US for work or like for corporate lifestyle? for corporate, because I like to wear suits, तो मैं बोलूँगा I would prefer York? Boston और न्यूयॉर्क, because आपको वहाँ पे of any because मैं फाइनेंस डोमेन की कंपनी में काम करता हूँ, तो ऑब्वियसली अगर आप प्योरली टेक प्रोडक्ट में काम करते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और अदर प्रोडक्ट्स, देन आप शायद कैली बोल सकते कैलिफोर्निया. But New York or Boston is the places for me if I see the corporate. Which city in US you would like to retire one day? Which city in US I would like to retire one day? I would say I would like to retire somewhere around Virginia, like McLean or Richmond in Virginia, because it's very near to
ईस्ट कोस्ट, तो अगर मेरे को कभी 1-2 घंटे के ड्राइव में कहीं और भी घूमने जाना हो तो मैं घूमने जा सकता हूँ। दैट इज गुड। अब बात, क्योंकि टेक्सास में आप 1-2 घंटे की ड्राइव में कहीं पे नहीं पहुँच पाओगे, आप टेक्सास में ही रह जाओगे। ओके, सो ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इन रैपिड फायर, नेक्स्ट इन लाइन, सो नेक्स्ट इन लाइन इन योर career. Next in line in my career, obviously, I'm looking for the next opportunities with in role wise. So to step ahead and more into more leadership. IC or manager? I would like to go right now IC because मैं अभी till next level में अपने आप को एक और IC देखना चाहता हूँ. उसके बाद शायद मैं मैनेजमेंट में जाऊँ, but I want to go more depth into IC so that जब मैं एक मैनेजर रोल में भी जाऊँ, एंड जैसा कि आपने बोला, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप आईसी हो तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर उनको इनडायरेक्टली मैनेज नहीं कर रहे हो। तो आई वुड लव टू हैव इनडायरेक्ट मैनेजमेंट विद आईसी इन माय नेक्स्ट रोल rather than fully managing the people, because मेरे को अभी भी अपने टेक्निकल विंग्स जो हैं एक्सपेंड कर। Next in line in terms of technical, which technical skill you would like to learn next? I would say next in line is AI, which I'm thinking of enrolling in a graduate certification from either UT Austin or the MIT Solon. मैं सोच रहा हूँ because कोई भी डोमेन हो, either retail or finance, आप इससे बहुत ही ज़्यादा affected है। तो बहुत ज़रूरी है कि AI integrations कैसे होंगे from the development perspective and from the platform perspective, कि AI integration, LLM integration कैसे कर होंगे और उनके effects क्या आएंगे। So understanding the cybersecurity aspect of that as well as the LLM aspect of that. तो दो चीजें मैं ये सीखना चाहूँ। Last question in rapid fire is next in line in personal life. Next in line in personal life, obviously getting along with someone for so that whom I can call like partner for the life. I think I get enough by the grace of God and my parents' support and mentors like you कि अब मैं फाइनेंशियल एंड लाइफ के उस सिचुएशन पे हूँ कि मैं ये सब चीज़ें आगे जाके देख सकता हूँ और एक अफोर्डेबिलिटी की लाइफ जी सकता हूँ। तो इसलिए अब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक मेंटल पीस भी देखें, क्योंकि लाइफ में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लाइफ में सब चीज़ें एक पेस के साथ चलती है। आपका मैं कल को सीईओ नहीं बन जाऊंगा, मैं ऑब्वियसली एक नेक्स्ट स्टेप पे ही जा सकता। तो उस लाइफ में मैं इवॉल्व पर्सनली भी होना चाहूंगा, नॉट जस्ट फॉर प्रोफेशनली। सो इवॉल्विंग विद समवन इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग। Nice. So okay, I think that's all from my side. So एक last चीज, अगर आपके पास कुछ टिप्स हो या कोई स्टोरी हो for our fellow software engineers. राइट, यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी ऑफ इम्परफेक्शंस। आपको फाइंड करना है पर्पस इन इम्परफेक्शन। जैसे देयर लाइक टू पॉट्स जिनको हम हिंदी में घड़े भी बोलते हैं, टू पॉट्स है। तो एक आदमी रोज पानी भरने जाता था उन दोनों पॉट्स में, और एक पॉट में थोड़ा सा होल था। तो उससे क्या होता था, जब तक वो अपने घर आता था पानी रास्ते में गिरता रहता था। तो जब तक वो घर आता था उसके पास 1.5 पॉट का ही पानी होता था 2 की जगह। तो ऐसे रोज होता था, वो रोज पानी भरने जाता था 2 पॉट्स में, भर के आता था 2 में, लेकिन घर तक आ पाता था सिर्फ 1.5 पॉट्स में। ये चलता रहा। उसके बाद जो जिस पॉट में होल था वो पॉट उससे बोलता है, बिकॉज इज इमेजिनरी थिंग, तो वो पॉट उससे बोलता है कि उस आदमी से कि मैं आप अपना काम पूरा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझ में पूरा पानी भरती हो और मैं वहां तक आते आते आधा ही पानी ला पाऊँ। तो वो जो आदमी है, दैट मैन स्माइल, वो मुस्कुराया और उससे बोला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कि बोला कि जिस साइड से तुम्हारे में बोल है उस साइड पे मैंने सारे में फूल आ चुके हैं, क्योंकि मैंने उसमें सीड्स लगा दी। तो तुम्हारी वजह से मैंने वहां बीज डाले थे और तुम वहां रोज पानी डालते हुए आते हो, तो वहां आज इतनी मतलब ब्यूटिफिकेशन हो चुकी है, इतने फूल आ चुके हैं तुम्हारी वजह से।
तो मॉरल ऑफ द थिंग यही है कि हर एक आदमी एक रीजन के साथ होता है, और उसके साथ चीज भी एक रीजन के साथ होती है। कभी कभी हमारे फ्लॉज की वजह से ही रोशनी बनती है, तो ऑलवेज डू नॉट लुक दैट इम्परफेक्शन कि हाँ ये हमारे इम्परफेक्शन है, हमें फाइंडिंग द पर्पस करना चाहिए इम्परफेक्शन में। तो ये एक चीज मैं बोलूंगा, मेरे अंदर भी बहुत इम्परफेक्शंस हैं और शायद रहे भी थे, मैंने पर्पस ढूंढा कि इम्परफेक्शंस में क्या करना है। अगर एक सिंपल लड़का एक स्मॉल टाउन ऑफ गाजियाबाद से, अब शायद बिग सिटीज में आता है, but उस वक्त स्मॉल टाउन नहीं था, वो आ सकता है जिसके पास सिर्फ एक डेल का लैपटॉप लिनोवो का लैपटॉप और ठीक ठाक इंग्लिश, नॉट दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, बट हाँ कि एम्बिशन था कि कुछ करना है लाइफ में, 1% बेटर भी बन जाऊं, लाइफ में हेड कर पाऊँ, वो कर सकता है। आज वो रिजेक्शन देखे उसने, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे डाउट आ सकता है कि मैं इतना इम्परफेक्शन हूँ, ये लोग इतने आगे हैं, इन लोगों के पास इतना सब कुछ रिसोर्सेस है जो मेरे पास नहीं। आ, आज वो एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में बैठा हुआ है। अगर वो आ, जिन यूट्यूब वीडियो से सीखता था, उन यूट्यूब उस पर कंटेंट बना रहा है, या फिर आज वो कॉन्फ्रेंसेस में जाके बोल रहा है, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। सिर्फ सक्सेस एक कदम बढ़ाने की बात होती है, कि अगर आप एक कदम भी बढ़ाना चाहें और उसमें पूरी अपनी मेहनत लगा दें, वही मायने, यही बोलना चाहूँगा। या आई थिंक थैंक्स क्रिशन, एंड डेफिनेटली इससे काफ़ी लोगों को अगर उन्हें भी कुछ हेल्प होती तो ऑब्वियसली वी हैव डन अवर पार्ट। अगर इससे किसी एक इंसान को भी अगर कुछ हेल्प हो जाती है, सो आई थिंक थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ब्लूप्रिंट एंड योर जर्नी, एंड जर्नी कंटिन्यूज। ऑब्वियसली नई स्टोरीज होंगी, नई चीज़ें होंगी, सो हम डिस्कशन करते ही रहेंगे। Sure. Thanks for sharing your blueprint, and back to you. This is your podcast. थैंक यू सागर फॉर टेकिंग टाइम और मेरे से ये सवाल पूछने के लिए। और मैं और सागर इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप हमसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं प्रोफेशनली, या फिर प्रोफेशन को आपको एलिवेट करना उससे रिलेटेड, तो बिल्कुल हमारे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हुई, हमसे सवाल पूछिए, और कमेंट्स में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पॉडकास्ट, और आपके लिए कैसे पर्पसफुल हो सकता है इसको बनाएं। थैंक यू। Thank you.